basically explain explain this basically Indian explain Indian monsoon in 1 minute. Explain Indian monsoon in 1 minute. Indian monsoon is caused due to the differential heating of land and the sea water, due to which the southwest due to which the winds are deflected towards the low pressure centers of the Tibetan Plateau, and due to which the southwest monsoons are drifted towards India, which causes rainfall, and its opposite happens during the winter season, and which causes the northeast monsoon. So thus it is overall a seasonal reversal of the winds of the monsoon. It is caused due to multiple factors like jet streams. The role of jet stream is the jet streams, Somali jet streams, and phenomena of Alina Modoki, then Indian Ocean dipole. These are the multiple factors which influence the Indian monsoons. See, okay. Now tell four stage through which India get monsoon or rainfall. Tell steps. What steps are required to get Indian monsoon rainfall? To receive it, low pressure belt means convergence of the ITC is first thing. Then presence of the masculine high pressure belt in the Indian Ocean region. Then the influence of the jet streams, which brings the moisture towards India. Which brings moisture towards India? See. What? See, first step will be summer heating. समर हीटिंग होगी तभी लो प्रेशर डेवलप होगा. लो प्रेशर डेवलप होगा तो फिर ओशन में हाई प्रेशर बनेगा. ओशन में हाई प्रेशर बनेगा और लैंड में लो प्रेशर डेवलप होगा. तो जो है ना एयर जो है ना मूव करेगी लो प्रेशर रीजन साइड, है ना. चूँकि कोरलिस फोर्स चल रहा है तो विंड जो है ना साउथ वेस्ट मूव करेगी. तो उसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली. तो क्या है ना क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है. उसका नेचर किस पर भी आ सकता है. वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. हाँ, वो स्टेप्स पूछ लेंगे कि स्टेप्स में बताओ उसको पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है. तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टेप्स भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेप्स में जो है ना बेसिकली जो है ना कैसे उसको ध्यान रखना है. फिर why ITCZ is important for Indian monsoon? ITCZ creates a low pressure trough over the Tibetan Plateau, which attracts the high pressure winds from the oceans, Indian Oceans. So to get the winds from the Indian Oceans, the ITCZ plays a vital role for India. ITCZ basically is a built up low pressure where the trade winds from northern and southern hemisphere converge, right?
वाई इज तिब्बतन प्लेटू इम्पोर्टेंट है? Why is Tibetan Plateau important? The Tibetan Plateau is the world's बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वाई इज तिब्बतन प्लेटू इम्पोर्टेंट है? हेलो। Hello. आवाज आ रही है? बताइए, वाई तिब्बतन प्लेटू इम्पोर्टेंट? Tibetan Plateau is the world's highest plateau, so due to which it heats in the summer season, due to which the low pressure is created over the Tibetan highland, and which in turn which is responsible for attracting the high pressure winds from the Indian Ocean region. तो बेसिकली ये इंडियन मानसून को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, तिब्बतन प्लेटू, क्योंकि अगर ये हीट होगा तो क्या है ना कि मानसून जो का सर्कुलेशन हो ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है बेसिकली, राइट? Which jet stream is important for Indian monsoon? It could be like Somali jet stream, tropical easterly jet streams, and subtropical for Indian monsoon. So these two are majorly for Indian monsoon. Then westerly subtropical jet streams are responsible for the western disturbance in winter rainfall. I'm not asking type. I'm asking which jet streams are important for Indian monsoon. So I said that tropical easterly jet stream is important. Somali jet stream is important. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट स्ट्रीम अलग अलग है। Sorry. Which tropical? Tropical easterly jet stream and Somali jet stream both are different. They are not. They are like kind of different because tropical jet stream originates from the Tibetan Plateau, which comes and which strengthens the submarine high area. But the Somali jet stream is generated due to the Ethiopian highland, that heating of the Ethiopian highland from in the Somalia region. So that both are responsible for Indian monsoon, but have a different role to play. And subtropical jet stream is not important for Indian monsoon. Both are important for Indian monsoon, I am saying. कौन सी बोथ? आप तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की बात कर रहे हैं ना? I am saying both tropical easterly jet stream and Somali jet stream. मैं ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की बात कर रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। Okay, tropical westerly jet streams are responsible for winter rainfall. तो क्या basically. तो क्या इंडियन मानसून नहीं है? नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे होता है? The northeast monsoon is different from the western disturbances phenomenon. Northeast monsoon is due to the reversal of this. नो, यही तो गड़बड़ है। Both are responsible. The same jet stream is there, subtropical jet stream is there, which is responsible for western disturbances as well as northwest monsoon. नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलग चीज़। मैं बोल रहा हूँ कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का कंट्रीब्यूशन इंडियन मानसून में क्या है? It is responsible for that northeast monsoon. नो, नॉर्थ ईस्ट मानसून इसी कारण नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि जब समर रहती है इंडिया में ना, तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है।
तो जब हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है तो क्या है ना कि साउथ वेस्ट मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है इंडिया में। अगर ये शिफ्ट ना हो ना तो फेवरेबल कंडीशन नहीं बनेगा। हाँ, तो इस तरह से जो है इसका रोल है इंडियन मानसून में बेसिकली है कंसेप्ट। देखिए आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल के हिसाब से क्या है ना कि थोड़ा आपको अपना जो नॉलेज है ना वो डेप्थ में रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बता रहे हैं ना तो कोई जनरल जिसका जीएस उस जीएस के हिसाब से आप आंसर देते हैं बेसिकली। आपका आपके आंसर में डेप्थनेस रहती नहीं बेसिकली। थोड़ा सा इसमें काम कीजिए आप, वो ज़रूरी है। ये आपको बाद में भी काम आएगा, मतलब जो है ना आप रियल में इंटरव्यू देंगे तो वहाँ भी काम आएगा। क्योंकि देखिए वो डेप्थनेस चेक करेंगे ऑप्शनल पे। क्योंकि देखिए सोमाली जो जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ना, ये लोकल जेट स्ट्रीम है। मेजर 3 जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल स्टर्ली, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और एक पोलर जेट स्ट्रीम। ये सोमाली ये सब लोकल है, ज़्यादा कोई फेमस नहीं है। बेसिकली लोकल एरिया में ओरिजिनेट होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं तुरंत। तो अगर इसका नाम आप नहीं लेंगे तब भी चल जाएगा काम। और अगर आप इसका नाम नहीं लेंगे ना, इंडियन मानसून की बात हो और आप सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के नाम डालें तो फिर कहीं कहीं गड़बड़ है। वो समझ जाए कि भाई इसके पास कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है भैया। और ये वो तो नेगेटिव चीज़ है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। व्हाट इज वाकर सर्कुलेशन? Vocal circulations is mostly seen in is formed during the El Nino period, during the normal year, and it is a continuous zone where at a particular location the air descends and at another location the air ascends. So this completes a complete cycle where the winds moves upright and the winds are sinking in a particular area. तो वाकर सर्कुलेशन मतलब क्या है? इसमें एयर का मूवमेंट होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है? It is the movement of air due to the temperature differences which creates low pressure and high pressure situation. तो किधर से किधर मूव करती है यार? So at a place which is receiving high temperature, so the low pressure will be created over there, due to which the air will ascend upward, and the air will ascend and it will create low pressure. So the surrounding air from the high pressure belt will come and fill the gap, and that upper air which is rising will flow parallel to the latitude, and then it will after traveling to a certain distance it will descend, which will create a high pressure zone in other area. देखिए आपको सिंपली ये बताना है ना कि नॉर्मली होता क्या है कि वार्म वाटर होता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जैसे ऑस्ट्रेलिया साइड, और जो कूलर वाटर होता है ना वो ईस्टर्न पैसिफिक जैसे पेरू कोस्ट साइड है। अब आपको पता है कि जहाँ वार्म वाटर रहेगा वहाँ एयर ऊपर उठेगी, राइज करेगी और सिंक कहाँ करेगी? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। जिससे क्या है ना ईस्ट वेस्ट जो है ना पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बन जाता है। इसी को बोलते हैं वाकर सर्कुलेशन। एक्सप्लेन करने का थोड़ा तरीका चेंज कीजिए आप थोड़ा सा, या तो अच्छे से आप रिवाइज नहीं किए रहते या फिर कहीं जो है ना आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप सीधे सिंपल से बताइए ना कि नॉर्मली ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है बेसिकली। हाँ, थोड़ा सा जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाइए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये बताया कि एल नीना होने का मेजर रीज़न क्या है? वाई एल नीना इवेंट्स हैपन्स? ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द, तो क्यों वीक होता है ये पूछ रहा हूँ मैं। There are multiple geographers have not been right, have not clearly can decipher the reason behind it, but after generally said that after 2 or 3 years it happens that the trade winds which generally moves, it weakens due to multiple climatological or other
कि इसका कोई डायरेक्ट कॉज रहता है किस कारण से वीक हो जाती है प्लेसमेंट्स। देखिए इसीलिए जो मॉनसून के ऊपर बहुत स्टडीज चलती ही रहती है मॉनसून वाले टॉपिक पर। तो ये बताइए कि इंडिया में अभी एल नीनो है, तो फिर बारिश क्यों हो रही है? That's why we are receiving less rainfall as comparison to normal years. लेस रेनफॉल है? कहाँ लेस रेनफॉल है जी? दिल्ली में तो बराबर रेनफॉल हो रही है। But according to IMD, we are having deficit this time in the monsoon. So far, I mean, we are not informed that. We have seen that in generally the monsoon comes around 15 June or July. This time monsoon came late first day, and back to it is so delayed monsoon and so late rainfall have received. Yet we have received late rainfall this year as comparison to other years. And what is it, La Nina? La Nina is opposite of El Nino in the sense that during La Nina, the trade winds are strengthened, due to which it causes heavy rainfall around the Australian coast and low rainfall around the Peruvian coast. And its impact on India is that India will receive heavy rainfall during the La Nina years. La Nina basically means कि the stronger version of वाकर सर्कुलेशन। वही जब जो वाकर सर्कुलेशन है ना, वही जब स्ट्रांग हो जाता है उसको उसी बोलते हैं ला नीना बेसिकली। हाँ, क्योंकि वाकर सर्कुलेशन क्या होता है जनरली कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो वार्म रहता है, तो वहाँ रेनफॉल होती है, और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जैसे पेरू वाला कोस्ट वहाँ जो है ना हाई प्रेशर रहता है, तो वहाँ ड्रॉट होता है बेसिकली। तो जब यही ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है बेसिकली, तो इसी को बोलते हैं ला नीना हो गया मतलब बेसिकली। तो फिर ये एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशंस क्या है? Southern oscillation is a cycle which oscillates between the eastern coast and the western coast and the Pacific Ocean. And this is both combinations of Nino and La Nina both. And sometimes the low pressure and the high pressure zones shift towards the western side or the eastern side of the Pacific Ocean. The complete cycle is known as El Nino Southern oscillations. Oscillations is periodic shifting of low pressure or high pressure system. हाँ, मतलब कि ये जो दो साइकिल है ना एल नीनो और ला नीना का, इसी को बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशंस बेसिकली। जैसे कभी वाकर सर्कुलेशन वीक हुआ एल नीना के कारण, फिर स्ट्रांग हुआ ला नीना के कारण, तो ये जो दो फेज है ना, इसी को बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशंस बेसिकली। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? Indian Ocean dipole is the warmer and the cooler seas in the western and the eastern side of the Indian Ocean. So if there is positive Indian Ocean dipole, so India will receive more rainfall. If it is negative side, so we will receive less rainfall. Then positive Indian Ocean, So Indian Ocean. यदि इंडिया में if there is a negative Indian Ocean dipole in India, then what will be impact in Australia? Australia will receive heavy rainfall. इंडिया में यदि नेगेटिव आईओडी है तो Yes. क्यों? Because negative iodine means that in Indian oceans we are having high pressure belt. So its opposite will be around the Australian coast. So there we will have a low pressure belt. So that's why it will receive heavy rainfall. नेगेटिव अगर नेगेटिव आईओडी है इसका मतलब क्या है? Negative iodine means that high pressure belt in the high pressure zone in the Indian Ocean region, due to which there will be
The clouds, there will be stable the situations in the Indian Ocean region. That's why moisture availability will be less in the Indian Ocean region, and that's why it will impact the Indian Ocean, India negatively, and it will weaken the monsoon. नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे रेनफॉल होगी फिर? और इसके अपोजिट चलता है ना, दे आर अ डाइपोल. डाइपोल मीन्स कभी एक साइड में पॉजिटिव जा रहा है, में नेगेटिव साइड. तो इस इंडियन ओशन साइड इज व्हाट इट इज द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन. So if eastern side is negative, then the western side will be positive. Positive meaning low pressure system. It will receive heavy rainfall. देखिए आप सिंपल सा ये बोलिए ना कि जब इंडियन ओशन जो डाइपोल है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो जो अराबियन सी है ना वो वार्म ज़्यादा रहता है. तो जो एयर है ना बे ऑफ बंगाल की, वो अराबियन सी साइड ट्रेवल करेगा. चूँकि एयर हमेशा हाई से लो ट्रेवल करती है, तो इसलिए क्या है कि तब इंडिया में अच्छी रेनफॉल होगी है. क्योंकि बे बंगाल अगर गर्म है, अगर अराबियन सी गर्म है तो हवा ऊपर उठेगी और रेनफॉल होगी इंडिया में. इसी का उल्टा हो जाता है कि जब बे ऑफ बंगाल गर्म हो जाता है और अराबियन सी कूल हो जाता है, तो अराबियन सी की जो एयर है ना वो ट्रांसफर हो जाती है इधर साइड, बे ऑफ बंगाल साइड, और फिर हवा उठेगी और ऊपर जो फिर रेनफॉल कराती है. तो वो रेनफॉल एक्चुअली कहाँ होती है? साउथ ईस्ट एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में है. ये बेसिकली रीज़न है. हाई प्रेशर लो प्रेशर ये क्लियर नहीं है जो बोल रहे हैं. यहाँ पे चक्कर है अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल का. अराबियन सी गर्म है मतलब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है. बे ऑफ बंगाल गर्म है यानी इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव है. ये इसका नहीं. तो हाई प्रेशर लो प्रेशर तो बहुत जनरल टर्म बोल रहे हैं हम ना. कैसे डाइपोल मतलब क्या होता है? आप डाइपोल एक्सप्लेन कहाँ कर रहे थे? आप बोलते कि जब इंडिया में लो प्रेशर होता है तो इंडिया में रेनफॉल होती है, ये इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है, और इंडिया में होता है नेगेटिव तो वो होता है नेगेटिव. तो ऐसे तो इंडिया में बे ऑफ बंगाल और अराबियन से दोनों आता है. फिर तो जामन को क्लैरिटी कहाँ से मिल रही है कि आप क्या करना चाहते हैं बेसिकली? आप ईस्टर्न पार्ट नहीं समझ में आएगा ना. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. नहीं यू हैव टू बी स्पेसिफिक. आप सीधे बोलिए ना, जो है ना कि यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं बोला जाता है इंडियन ओशन डाइपोल की उसमें है. वेस्टर्न ईस्टर्न बोला जाता है इसमें एलिनोस और लानिना में. इसमें बोला जाता है अराबियन सी और बे बंगाल बेसिकली, कि जब अराबियन सी जो है ना वार्म होता है तो इंडिया में रेनफॉल होगी, और जब बे बंगाल वार्म होगा तो जो है ना इंडिया में ड्रॉट होगा बेसिकली. इसी को बोलते हैं निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बेसिकली. क्योंकि यदि आप ईस्टर्न और वेस्टर्न बोलेंगे तो फिर तो साउथ वाला भी आ जाएगा, सदर्न इंडियन ओशन भी आ जाएगा, इक्वेटर के नीचे वाला. तो क्लियर कहाँ से हो रहा है कि आप कौन से पार्ट की बात करें, कहाँ की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली लोकेशन बताइए ना कि लोकेशन कहाँ है बेसिकली, उसके इंडिया में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं ना जी. इंडिया में रेनफॉल होगी नहीं होगी? देखिए आप समझ नहीं रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या है. यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था ना कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली. आपको स्पेसिफिक बताना है कि इंडिया पे इस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली. और वैसे भी लगता है आप उल्टा भी तो बोल रहे थे. वेस्टर्न वाला अगर गर्म होगा तो इंडिया के लिए फ़ायदा ना है, आप ईस्टर्न वाला बोल रहे थे.
नेगेटिव मैंने ऑस्ट्रेलिया के रिसेट में पूछा था, इंडिया के रिसेट में नहीं पूछा था कि अगर इंडिया में नेगेटिव आईओडी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली। उसमें मैंने बोला था कि ईस्टर्न ओशन जो रहेगा, इंडियन ओशन का वो जो रहेगा वो लो प्रेशर सिस्टम रहेगा या फिर वहाँ पर वार्मर सरफेस रहेगा, which will cause rainfall in Australia or Indonesia, and its opposite will happen if it's a positive ocean. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ आते हैं। मेडन जूलियन ऑस्किलेशंस क्या है? Madden-Julian oscillations is the west to east circulation from the which is the mostly which is concentrated in the tropical sea, and the east the central eastern Pacific of the ocean is warmer, due to which it creates cooler side in the eastern and the western side of the Pacific Ocean. इसका ट्रेवल करने का डायरेक्शन क्या है? West to east. वेस्ट टू ईस्ट क्यों ट्रेवल करता है ये? वेस्ट टू ईस्ट क्यों करता है ये क्वेश्चन? हाँ, मल्टीपल इम्पैक्ट हो सकता है, शायद कोरियलिस फोर्स के कारण हो सकती है। ये कोरियलिस फोर्स नहीं रहना इसका। बताइए बताइए। Why it travels west to east, not east to west? I don't know exact reason behind it. I don't know the exact reason behind it. हाँ, तो इसको पता कीजिए। इसका इंडिया मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? There are two phases in this Madden-Julian oscillation: a convective phase and suppressed phase. In case of convective phase, it is good for India, and if it is bad for India. Convective phase means that the low pressure system is created over India, which creates rainfall. इसको और अच्छे से पढ़िए अभी आप। और इसका साइकिल कितने दिन तक होता है? Monthly or weekly. वीकली कहाँ से होता है जी? मंथली होता है। रिपोर्ट्स में मैंने दिखाया है कि weekly भी रहता है। वीकली मतलब समझ रहे हैं ना आप, 8 दिन की बात करें। 8 दिन में थोड़ी हो, ये पूरे अर्थ का चक्कर लगाता है मेडन जूलियन ऑस्किलेशंस से। मिनिमम 30 डेज रहता है इसका। इसका मतलब ये रहता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग सा रहता है इसका। नहीं तो बता तो रहा हूँ, मिनिमम 30 डेज है। इससे कम का हो ही नहीं सकता, साइकिल को पूरा करना पड़ता है ना। तो मिनिमम 30 डेज है। 30 डेज फिर आगे 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, ऐसा होता है। 30 डेज मिनिमम है इसका बेसिकली। खाकर हिंदी में पता नहीं। What is what are the active and break period of monsoon? What are the active? And the break period of monsoon? Active period when the monsoon is, when the rainfall occurs during the monsoon seasons, and break happens when there is break in the monsoon for a shorter period of time.
after intense rainfall. फिर बोलिए। Active period is means when consistently the rainfall is occurring, and the break period comes when after the during the monsoonal period only. After certain days, after few days, there is break in the monsoon. The rainfall does not occur, so that period is known as break in the monsoon. मस्करीन हाई क्या है? मस्करीन हाई Mascarene High is a zone around the Madagascar and the Indian Ocean regions, which is having high pressure system, which is caused due to the subsidence of the subtropical easterly jet streams, which cause the intensification of the Mascarene High. इसका सोमाली जेट से क्या कनेक्शन है? It is strengthened Somali jet stream. ये स्टेशन करता है? क्योंकि ऐसा होता है कि वो हाई प्रेशर सिस्टम में Somali है. ये कैसे स्ट्रेंथ करेगा मस्करीन हाई सोमाली जेट को? क्योंकि यहाँ पर से डाउन, यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे जा रही है हवा, सेंड हो रही है स्क्रीन हाई में, और जो वो है सोमाली वाला, वहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. देखिए मस्करीन जो हाई है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. जब ये हाई प्रेशर है और अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में लो प्रेशर है और हवा हमेशा हाई से लो ट्रेवल करती है, तो ये सोमाली जेट की तरफ जाएगा. सोमाली जेट और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है. अब चूँकि कोरलिस फोर्स लगेगा, तो जो सोमाली जेट है ना, वो बहुत सारा जो है ना मॉइस्चर उठा के जाता है अराबियन सी साइड है, क्योंकि कोरलिस फोर्स के थ्रू, और अराबियन सी के थ्रू जो है ना पहुंच जाता है इंडिया में, वहाँ रेनफॉल कराता है. ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है. और why does Mumbai receive heavy rainfall every year? Why does Mumbai receive heavy rainfall? Every It is year. located every year. It is located, it's due to its location, as it is located near the coast, and also which receives the rainfall caused in the and also it is located near the Western Ghats, so due to the influence of the Western Ghats, orogenic rainfall is caused during this year. Also the other infrastructural factors like drainage issues and urbanization issues and concretization issues. So due to this, मैं फ्लड का रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, rainfall का क्वेश्चन हो, मैं रेनफॉल की रीजन पूछ रहा हूँ. तो वो मैंने फर्स्ट पार्ट में डील कर लिया कि वो ड्यू टू द इट्स लोकेशंस, इट इज नियर अ कोस्ट एंड part of the Western Ghats, due to which orographic rainfall happens, and this is the first, majorly the first places which receive the rainfall firstly during around 15 June. That are something.
ओरोग्राफिक रेनफॉल। And why does Deccan Plateau receive less rainfall? Because the locations of the Deccan Plateau is like it comes at the leeward side of the winds, so that's why the moisture laden winds are absent in the leeward side of the Western Ghats. That's why the Deccan Plateau is very major. What is monsoon worst? What is monsoon? Worst. B-U-R-S-T. Monsoon worst. Burst after burst. Monsoon burst and then break of the monsoon. Break? The sudden all of the monsoon पानी जब गिर रहा है एकदम अचानक fall of rainfall. मानसून वर्स्ट मतलब क्या बोल रहे हैं आप? आप burst बोल रहे हो ना? B-U-R-S-T. हाँ, Okay. तो sudden arrival of the monsoon winds which comes. That is monsoon burst. सडन अराइवल नहीं, सडन अराइवल ऑफ इंटेंस रेनफॉल थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून, इसे बोलते हैं मानसून वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है कि अचानक से बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी रेनफॉल हो जाए, इसे बोलते हैं मानसून वर्स्ट बेसिकली। जैसे मान लीजिए मानसून आना था 1 जून को और आ गया 25 मई को, अचानक बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसे बोला जाता है मानसून वर्स्ट बेसिकली। तो समय से पहले भी आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, दो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें बेसिकली, इसको मानसून वर्स्ट बोला जाता है बेसिकली। हाँ, तो देखिए अभी मैं आपसे केवल जनरल चीज़ पूछ रहा हूँ, मतलब ये इतना क्वेश्चन